Good afternoon, everyone, and a warm welcome to everyone for today's webinar on the behalf of South Asia Research Institute for Minorities. My name is Hera Naqvi. I'm the Senior Research Associate at South Asia Research Institute for Minorities and a minority and women right advocate. At SARIM, we committed to advance justice, equality, inclusion by amplifying voices and the experiences of historical marginalized communities across South Asia. Today, we are hosting a very important webinar titled Hijab, Identity and Rights Minority Women Facing Religious Discrimination in South Asia and particularly in India. In this session, we aim to shed light on the challenges of minority women in India, particularly at the intersection of religious identity, personal freedom, and discrimination. Our goal is to understand these real life experiences, discuss the systematic barriers, explore avenues of advocacy, legal reform, and social change. We are honored to have two talented speakers from India with us today, Ms. Hasina Khan and Ms. Vidya Dinkar. So, starting by Ms. Vidya Dinkar, a prominent social activist from India, Vidya has been actively involved in organizations like Growth Watch and Indian Social Action from working on human rights and social justice. She has been at the forefront of advocacy and often challenging powerful right wings group and standing for the marginalized communities. Her work also has been recognized with the award such as Lawrence Pinto Human Rights Awards. So, Miss Vidya, it's a pleasure to have you with us today. The floor is now yours. Thank you. I am most comfortable when there are questions my way, but I'll try to just talk. Um, we've all seen what happened more recently, where a political, well, he was no political novice. He's been chief minister of Bihar for almost 2 decades, well known as, a prominent leader in the country today. And for that man in a public program, which was, of course, a government program, where he's handing an appointment letter to an Ayush doctor to actually pull down her niqab, it boggles the mind, right? And I was thinking, what if she suddenly turned around and grabbed his spectacles? Okay, what would he have done? Would he not be insulted? Would he not be slighted? Would he not have? Would it not have been a big controversy? And yet, in this case, we saw that there was not even a decent speaking out against this by civil society, by the political opposition, by the Congress party, who made a strong pushback against what happened. When a man of his stature does something so debasing, and I don't even want to think of it solely as a Muslim woman problem. I look at it as a woman and I am most insulted. You know, it's like, so suppose we are in a social situation. There is not even this unequal, relationship between the chief minister, such a senior politician, and somebody who is seeking an appointment letter and receiving one. But even if it's just an ordinary social occasion, I don't want to shake hands with someone. If someone pulls my hand and shakes it, I am not going to take that lightly. And what has happened through this? I don't know the current situation, but last I heard that Dr. Nusrat had not even joined. So that appointment letter given, and then the act after that has pushed her away from the workforce, from the public eye, from pursuing a career, from living a full life, and pushed her into a corner, which even the BJP and its allies, at least out there say, oh, we are there to rescue Muslim women, to do good for Muslim women. What have they done? They have just pushed away women who want to occupy half the space that they really, own. Across the world, half the earth, half the sky is women.
and you're pushing them out of the public places. Here you say they need to get an education, but then you'll say no hijab in classrooms. You say they need to join the workforce, they need to come out, they need to participate in public life, and then you do actions that push them out of this. And I think my huge disappointment has been with this particular incident that there's been not sufficient pushback. You might have constitutional tenets. We all, especially I see that marginalized groups, Dalit, women, and minorities, all really cling to the constitution, cling to the judiciary. It's like they are their only resort when something bad happens. They believe so much in justice flowing from the courts, from the judges, etc. And yet, what do we see around us? A crumbling of all these institutions, all these democratic institutions. Why? When such an incident happens, and it happens through maybe the CM of Assam, the CM of Bihar, these kinds of people spewing this kind of it's an anti-constitutional act. It is an anti-women act, and of course, it's anti-Muslim too. But if there is no pushback, even if it is inconvenient, even if it is not the popular opinion, if we do not speak up against it, then that becomes the norm. That becomes the accepted thing. And therefore, it's very crucial that at these crucial moments, we actually speak up and speak out and push further so that this doesn't become the status quo. This doesn't become acceptable. And we draw the line. These Lakshman Rekhas that they love to put for women, we have to obliterate them. And these moments are crucial politically and in the history of the women's movement, in the history of a nation, and what we desire our country to be, that we speak up very strongly, we take this to the courts, we test the courts on this, whether we get a positive response or not, but we push back. And I think that keeps our idea of democracy, the promise that our founding mothers and fathers gave to us when they fought for our freedoms, that we keep that light of freedom alive in that way. And I think we must first, perhaps a women delegation could go and talk to Nitish Kumar, see what he says. Another, a lot of us could pull it through the courts. There have been protests, and I'm very glad. But I feel it hasn't been enough. It should signal to every man or every woman also who holds these kinds of ideas that women should dress in a particular way, should behave in a particular way, should only stay at home if they want to dress in a certain way. All these people must be re-educated on human rights, on constitutional values, and what we think we want from us and our world. Yes, that's my first intervention. I can come back whenever you ask me to. Thank you so much, Miss Vidya, for sharing your insights and experiences. Completely agree with your points you raised. But can you highlight how the social activists like us help us to ensure justice for women and for especially for minority women? So, through the hijab controversy that we experienced in Karnataka a few years ago, I think women activists here helped to sort of broaden the whole debate. It was wonderful to see articulate young Muslim girls come out, speak up, begin their political education and articulation in such a strong manner. But emotions were running high. We were wondering whether the fact that hijab is my right, whether it was the right slogan, whether it should actually be hijab is my choice. And I shall exercise that. And who are you to tell me otherwise? My constitution gives me the right. The fact that I am born, I can exercise that right. But the choice, the fact that wearing a hijab or wearing a niqab or wearing a pair of spectacles, wearing a sari, wearing a skirt, whatever, it's my choice. So I think women activists in Karnataka, I think sort of from the purely religious angle
of whether hijab is mandated, etc., and whether all Muslim girls and women should wear the hijab, etc., I think we played a role in trying to broaden the discussion so that we veer the conversation back into how important education is for all girls and especially Muslim girls, how important it is for them to come out in the public sphere, not for them to be pushed back, and how important choice is to all women, especially Muslim girls who are exercising that choice on a daily basis. They choose education and they choose to travel in public transport. They choose to access spaces that were not accessible to them for various reasons before, and that we must encourage and build that environment that gives them the confidence to continue to do so. I have personally seen, not just now, but in my city of Mangalore, even 20 years ago, if I went to, say, a college program for the annual day or something like that. In all the annual days, as I'm handing out certificates or prizes, more than half the prize winners, certificate getters, were Muslim girls. And in Mangalore, you have a good proportion, a good mix of all communities, Hindu, Muslim, and Christian. But definitely the outperformers, the really good performers were Muslim girls because they had accessed the education. They felt they have the space to flower and flourish. And that was so heartening. And the hijab, whole controversy sort of pushed them back into saying that, hijab is my right and this is what I'm going to exercise. You don't allow me to wear the hijab in college. I will not come to college. And it was getting so muddled. And I think it's very important for women activists, and that was a very discerning question from you, that women activists sit down, look at what we have fought for all this while. Don't allow political actors only to hog the limelight, and to sort of broaden the discourse so that different points of view and the important points of view come forth. And we thought it was very important because, even what was interesting is in my conversations, even with right-wing people, I'm talking of right-wing Hindutva leaning right-wing people, not one said, oh, it's fine, the Muslim girl should stay at home and she need not come to college. Not one said that. Everyone was very uncomfortable about the fact that, college doors were shutting, college gates were being shut, and Muslim girls were outside dying to come in and access those educational spaces again. Everyone was uncomfortable, even the Hindutva bodies. So I think these are spaces that especially activists must seek out and broaden, because we can't just preach to the converted. We need to have dialogue and discussion with those who can then be brought around to see our worldview and appreciate, that women are fighting for their space and that space is theirs. Nobody should be able to take it away from them. Yes. Well said. Thank you so much for highlighting both the challenges and resilience of the marginalized communities, and inspire all of us to continue for advocating for justice, of course. Next, it's my pleasure to introduce Ms. Hasina Khan, founder of Beba Collective, an association of grassroots activism and independent women group formed to fight against justice, communalism, and hate speech. Ms. Hasina activism focus on two main areas: advocating for legal reforms and addressing the personal struggle of the women facing discrimination. Her work has been crucial in bringing attention to the everyday reality of minority women. Ms. Hasina, thank you so much for joining us today on such a short notice, of course. Please feel free to share your screen and begin with your insights. Over to you. Hi, thank you so much. Thank you so much, Vidya, about your views and presentations. And thank you so much, Zahra, and Nisha is here. I can speak to Hindustani. It's much better for the Vidya for you. Is it okay Yes, for you? yes, of course. Yeah. Sure. I'm South Indian, so my Hindi is really bad. I know my English is not very good. Okay, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं टोटली एग्री करती हूँ इस बात को लेकर कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, वो हरकत जो है वो बहुत ही कंडेनेबल है।
वो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, और ये बहुत ही अनएथिकल भी है, अनडेमोक्रेटिक भी है। इसमें ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है। वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, पर्टिकुलर आइडेंटिटी के या पर्टिकुलर रिलीजन के चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो एक पूरे बिहार के देशवासियों के चीफ मिनिस्टर है। तो उनको ये हरकत करना, जिस अहदे पर वो है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए। और जो उन्होंने किया उसके बाद में उन्होंने कोई भी शर्मिंदगी जाहिर नहीं, कोई सॉरी नहीं कहा वगैरह। ये बहुत ही इससे ये जाहिर होता है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, और जो हम करते रहेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना है। ये जो पूरा जो 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 ये आज का जो रिजीम है, पिछले 10-11 साल से जो रिजीम है, इस रिजीम से हमें ये इस तरह के जो पावरफुल पॉलिटिशियंस है या जो पोजीशन में आते हैं, जो इलेक्टोरल बॉडी से चुन कर आते हैं, इस पोजीशन को जिस दिशा में ले जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया, इलेक्टोरल बॉडी से वो चुन के तो आते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव नहीं करते हैं। इस तरह की हरकत करने से ये बनना चाहते हैं, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को के फाउंडेशंस को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा निषेध करते हैं, कंडेमेबल है। इसको हम बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। इससे क्या होता है, तो वो एक पार्ट है। इससे ये हुआ कि उस लड़की ने वो जगह छोड़ दी, वो जॉब छोड़ दी। और उसके बाद में एक गुस्सा जो है वो मुसलमान समुदाय में वापस आ गया, जो कर्नाटका के हिजाबी बाद में हुआ। और ये आया था कि हम अपनी पहचान को पहनेंगे, हटाएंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। तो इससे क्या होता है कि ये जो चॉइस है, ये चॉइस फोर्सिबल चॉइस हो जाती है। ये सिर्फ चॉइस नहीं होती, ये फोर्सिबल चॉइस हो जाती है। आप हमें रिजेक्ट करोगे, हम वापस हम आपको देखेंगे। तो ये जो फोर्सिबल चॉइस है, ये एक तरीके का खतरा भी है। ये हमेशा एक याद रखना चाहिए, दिस इज नॉट अ चॉइस, ये फोर्सिबल चॉइस है कि आप हमें रोकोगे, हम करें। वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये एक फेमिनिस्ट मूवमेंट में, फेमिनिज्म में हम किस तरीके से उसको डिबेट करते हैं, कैसे देखते हैं, दूसरा पार्ट है। तो वो एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि एक्चुअली चीफ मिनिस्टर ने ये एक बुरखे को, किसी नकाब को टच करना यहाँ तक नहीं है, एक औरत को टच कर, एक लड़की को टच करना, ये एक तरीके से असॉल्ट है। ये एक जेंडर असॉल्ट है। ये मतलब दिस इज एक्चुअली अनदर प्रॉब्लम। तो इनके ऊपर एक हरेसमेंट का पब्लिक डोमेन में इस किसी भी औरतों को बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसकी परमिशन के उसको हाथ लगा देना, ये भी एक असॉल्ट है। उसको इनके ऊपर सच बताओ तो उनको केस होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर इन्होंने मुसलमान औरत के साथ किया, लेकिन एक औरत के साथ। ये उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक लीगली उनके ऊपर केस होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर क्या होने वाला है और क्या असर उनको कुछ मिलना है। सेकेंड पार्ट मुझे लगता है कि ये जो आपने जो टॉपिक चुना है, हिजाब और आइडेंटिटी, तो हिजाब जो है वो आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी हिजाब नहीं है, हिजाब आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी तो ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, कास्ट से हूँ, जाति से हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है ना। या मेरी 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 जेंडर आइडेंटिटी है, मेरी वर्क आइडेंटिटी है, मेरी रिलीजन आइडेंटिटी है, मेरी सेक्सुअलिटी मेरी आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। लेकिन आइडेंटिटी को रिलीजन के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो आइडेंटिटी एक कंजर्वेटिव आइडेंटिटी में बदल जाती है, वो प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी में नहीं बदलती। जैसे कि हर दिन हम सुनते हैं कि हिंदू धर्म में एक साथ हो जाओ, हम एक साथ हो जाएंगे तो एक वन नेशन वन रिलीजन। ये खतरनाक है। ये वन नेशन वन रिलीजन वन थियरी वन लॉ वन इलेक्शन, ये खतरनाक है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना डेमोक्रेटिक होगा। तो अगर आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये सेकंड पार्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे कहने की जरूरत है। अब यहाँ पे हिजाब के इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। जब कर्नाटका का इशू हुआ था, जब विद्या ने भी बात करी, कर्नाटका का इशू हुआ था, तो कर्नाटका के इश्यूज में जो हिजाब का इशू हुआ था, उसमें विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, एक। और जो मुसलमान औरतों के ऑर्गेनाइजेशन थे उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो पहले हम कर्नाटका के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहली बात है कि एक स्कूल है, एक कॉलेज है, जो एक
एक रेगुलर कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, और उस कॉलेज ने अभी एक स्कूल ने एक अपने आप में एक ट्रेडिशनल बना दिया है कि जिसको जो पहनना है अपने रिलीजन का वो पहनकर आएंगे, और वो पहनकर आते थे और वो इस कॉलेज स्कूल अटेंड करते थे। अचानक उनको रोक दिया, अचानक उनको रोक दिया। ये जो अचानक रोकना जो होता है ना, ये प्रॉब्लमेटिक। अगर कोई स्कूल ये सर्कुलर निकालता है कि नहीं ये सब यूनिफॉर्म एक होगा, वटेवर तुम्हारा जो भी पहना हुआ होगा वो इस गेट के बाहर होगा, गेट के अंदर नहीं होगा, स्कूल के प्रेमाइसेस में, कॉलेज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रेमाइसेस में नहीं होगा। अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा सर्कुलर निकालती और उसका कोई वायलेट करता तो फिर हम बोलते थे कि ये वायलेशन है, ओके, है ना। लेकिन ऐसे कोई सर्कुलर निकला नहीं। ये अचानक एक दिन डिसाइड होता है दरवाजे पर स्कूल के कि आप कल से ये आज से ये पहनेंगे। तो ये क्या है ना कि ये हर्ट होता है। तो ये मुसलमान बच्चियों को ये हर्ट हुआ, लड़कियों को ये हर्ट हुआ कि आप अचानक कैसे रोक सकते हैं। मैं तो इतने सालों से पहन रही हूँ, घर में भी पहनती हूँ, स्कूल में भी पहनती हूँ, कॉलेज में भी पहनती हूँ, अचानक आपको क्या हो गया कि आपने मेरे को मना कर दिया। तो ये जो स्कूल का जो एक मतलब विद्या तो प्रोफेसर आप जानते हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज में कोई डिसीजन जो है वो अचानक नहीं लिया जाता है। उसका एक मैनेजमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, तब जाके एक सर्कुलर बनाते हैं जो भी कुछ स्कूल का एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बनता है। यहाँ पे जब इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का डिसीजन है। इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है, इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है, इसमें मुसलमानों को टारगेट करने का और उसके टारगेट करने के तरीके को लोगों के सामने लाने का, ये कहने का कि देखिए ये कितने खराब लोग हैं, ये कितने पिछड़े लोग हैं, कंजर्वेटिव है, और ये कैसे कपड़े पहनते हैं, और अपनी अपनी कौम की औरतों को वो क्या क्या पहना के दबा के छुपा के रखते हैं। ये जिस तरीके का सरकार इमेज बनाना चाहती थी, वो इमेज वो बना चुकी थी। लेकिन शाहीन बाग ने वो इमेज को ब्रेक कर दिया। शाहीन बाग ने वो इमेज को ब्रेक कर दिया। तब इन्होंने अलग अलग तरीके से उसके हथकंडे इस्तेमाल करने गए, कभी स्टूडी बुल्ली एप्स किया, तो कभी हिजाब का इशू किया, तो कभी नीतीश कुमार का ये स्टैंड किया। तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि वो मुसलमान औरतों को, मुसलमान औरतों के कंधों पर मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करते रहना, ये इस सरकार की नीति के अंदर है, इसकी पॉलिसी के अंदर। मुसलमान कम्युनिटी को मर्दों को ये दिखाना कि वो कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं और उनकी औरतें कितनी विजिबल है, और कितनी प्रॉब्लम, कितना उनको सहन करना पड़ता है, और ये मर्द कितने प्रॉब्लमेटिक है, और इसके लिए हम इन औरतों को हम बचाना चाहते हैं। तो ये जो उनका कॉन्सेप्ट है जो बचाना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये कोई सपोर्टिव फॉर द जेंडर नहीं है, सपोर्टिव फॉर एनी वेमेन नहीं है, ये एंटी वेमेन है, ये एंटी जेंडर है, और ये एंटी मुस्लिम भी। अगर किसी भी औरतों के बारे में अगर ये सरकार को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, सपोर्ट करना है, तो इस देश में पिछले 10-12 साल से जिस तरीके के बच्चों के साथ जो रेप हुआ है, औरतों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट है, उन्नाव जैसे केसेस को आज हम देख सकते हैं। वहां पर इनका रोल क्या है? वहां पे उनका रोल क्या है? वहां पे उनका रोल बायसेस है, उनका वहां पे रोल जो है वो अनप्रोटेक्टिव है, नो जेंडर सेंसिटाइजेशन है। रेप विक्टिम्स के साथ में उन्होंने क्या किया, आपने देखा भी किस केसेस के बारे में है ना, कि उनके 11 लोगों को कैसे वो गार्डेन्स और मिठाई वगैरह। आज जब भी कोई रेपिस्ट छुट्टी आता है, आज जब भी कोई जैसे ये इस आदमी उन्नाव के जो रेपिस्ट है उसके साथ भी उन्होंने क्या वेलकमिंग किया। तो इससे ये समझ में आता है कि इनको जेंडर पर्सपेक्टिव से कोई, इनके पास जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है, और वो जेंडर सेंसिटाइज नहीं है, और ये हमारे नाम से पॉलिटिक्स करते हैं, और हमारे नाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारी पॉलिटिक्स वो कर चुके हैं। अब वो पॉलिटिक्स उनकी पुरानी हो चुकी है, तो अब वो अलग अलग तरीके से इसको एक बेशर्मी की तरह और एक डराने की तरह और अपनी सत्ता का फायदा उठाने की तरह ये काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं समझती हूँ कि आज के वेबिनार नहीं भी होता तो भी लोगों को ये पता होता है कि ये हो रहा। आज का जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है उन सबको पता है कि क्या है, लेकिन जो आज के पार्टिसिपेंट्स है उनको क्या है, और आप ऑर्गेनाइजर का भी क्या है। मैं अपनी बात अगर करूँ कि मैं एक मुस्लिम समुदाय में मैं पिछले लगभग 40 साल से काम कर रही हूँ। मेरे वक्त पे मैं जिस वक्त जब 14-15 साल की थी, तो मेरी अम्मी बुरखानी पहनती थी, मेरी दादी ने कभी नकाब नहीं लिया, कभी स्कार्फ नहीं पहना। मेरी अम्मी अब्बा ने, मेरे घर के लोगों ने भी मुझे कभी बुरखा स्कार्फ पहनाने के लिए मुझे कभी नहीं पहना। मुझे याद है कि एक दिन मैं कॉलेज में पहन के गई थी, कुछ सहेलियां जो बहुत अब्रॉड से, उनके पेरेंट्स उनकी फैमिली गए थे अब्रॉड से, बुरखा आता था, हिजाब आता था, ये भी है ना। 70s में मुसलमान गल्फ कंट्रीज में जाते थे, तो गल्फ कंट्रीज में जाते थे पैसे कमाने के लिए। तो गल्फ कंट्रीज का जो रिलीजन है उसका इन्फ्लुएंस जो भी है वो हमारे साउथ एशिया कंट्री में बहुत हुआ। तो वो जाते थे तो साथ में वहां से बुरखा लेके आते थे, तस्वीर लाते थे, मुसल्ला लाते थे।
और कभी कभी तो वहां का रिलीजन भी लेके आते थे, कहते थे कि यहाँ का मुसलमान कितना खराब मुसलमान है, उसको ये पढ़ना नहीं आता, उसको वो पढ़ना नहीं आता, उसको ठीक से पहनना नहीं आता, उसको ये ठीक से एक्सेप्ट करना नहीं आता, उसको फॉलो करने नहीं आता, गल्फ कंट्रीज में कैसा है उसको फॉलो करते। तो मुझे याद है कि 70s में वहां से आना शुरू और 80s और 90s में ये बड़ा होने लगा। तो मेरे समय पर हमारे कॉलेज में जो बहुत ही प्रिविलेज क्लास की जो लड़कियां आती थी, उनके सिल्क वाले, कलरफुल वाले, चमकीले वाले डिजाइन नकाब वो पहन के रखती थी, और फिर वो उसका पूरा स्टेटस बदलता था क्लास में, बिकॉज शी इज वेयरिंग द बुर्का, तो शी इज शोइंग द आइडेंटिटी फॉर द रिलीजन एंड शी शोइंग फॉर द क्लास ऑल्सो एंड अपना प्रिविलेज भी। तो ये इन्फ्लुएंस बहुत उसके बाद से बढ़ने लगा। फिर उसके बाद कभी नहीं देखा है कि किसी ने नकाब साफ वगैरह किया। मैं समझती हूँ कि ये आइडेंटिटी नहीं थी हमारी। हमारी आइडेंटिटी बनी कैसी, इसकी पॉलिटिक्स हमको समझना पड़ेगा। जब 92 का राइट्स हुआ, तब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब मुसलमानों के ऊपर जो हिंसा हुई, हमला हुआ, तो मुसलमानों के अंदर ये वो भी उसके अंदर भी दो तरीका का समाज था। एक समाज था जो बहुत ही रिलीजियस कंजर्वेटिव था, और एक समाज था जो प्रोग्रेसिव था। तो जो कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, उन्होंने अपने नंबर्स को दिखाने के लिए अपनी आइडेंटिटी दिखाना शुरू किया, अपना रिलीजन दिखाना शुरू किया। और वो कंजर्वेटिव समाज क्योंकि रिलीजन के नाम से तो बहुत बिकता है, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी रिलीजन हो या मेजोरिटी रिलीजन हो, रिलीजन के नाम से बिकता भी है और रिलीजन के नाम से चलता भी बहुत है ना। तो जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है उसके पास रिलीजन के बारे में एक ठीक है, लेकिन जो कंजर्वेटिव रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारा था कि देखिए मुसलमान औरतों के साथ क्या हो रहा है, टीवी फिल्में देखने से हमने हमारे 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 ऊपर क्या हिंसा हुई है। मैं उस समय के भी दौर की बात कर रही हूँ जब मैंने 92 में काम किया था। मेरे साथ में और भी साथी हो सकते हैं यहाँ पर। जब मैं रिलीफ केयर में काम करती थी, तो वहां पे इस्तेमाल की औरतें आती थी, आलिमा आती थी, कहती थी कि देखो बुर्का पहन ली, नकाब पहन ली, अब मुसलमान खतरे में है, अपनी पहचान दिखाना पड़ेगा। हमने गुनाह किया, हमने रंगीन टीवी दिखा दिखा के हमने गुनाह किया है, अपने घर के डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे को लेकर हम पुलिस स्टेशन में गए, इसके लिए आज हमको ये सहन करना पड़ रहा है, ये पाप है। तो ये कहानी भी हमको बनाई गई थी और ये कहानी के साथ भी हमको झेला गया था और हमको डराया गया था कि आप पहनो, आप नकाब पहनो, आप ये पहनो, आप वो पहनो, और कैसे अपने रिलीजन दिखाओ। तो ये भी एक पॉलिटिक्स रही है। तो मैं नहीं समझती कि जो नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, वो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में बोलना है, तो विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, जहां पे कंजर्वेटिज्म है, जहां पे आपने आइडेंटिटी के नाम से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है और मुसलमान औरतों का इस्तेमाल किया है। 3 तलाक का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया, ओके, सुप्रीम कोर्ट में गया, पिछले 70 साल से मुसलमान औरतें कह रही है कि कानून में बदलाव लाओ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को कह रही है कि भैया तुम तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप हमारे कानून में बदलाव लाओ। कितने मरतबा मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग 10,000 मरतबा गए हैं, चिट्ठियां लिखी है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ लेकर आओ, कुछ लेकर आओ। आपने कुछ नहीं किया। आपने 2001 में जामिया मिलिया की 2001 में जब जामिया मिलिया में मुसलमान औरतों की मीटिंग करवाई, तो हम ये सोच के गए थे कि आप कुछ स्टैंड लो, तो कहते नहीं, खुदा को तलाक पसंद नहीं है, लेकिन हो गया तो हो गया। तो अगर हो गया तो आप कानून लाइए, आप अपने तरीके से कुछ बदलाव लाइए, आप अपने तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन लाइए। आप भीड़ जमा करते रहते हैं, आप इस्तेमाल करते रहते हैं, आप मुसलमानों को एक लाने की बात करते हैं, मुसलमानों के और मुसलमान औरतों के रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं कर रहे। मुसलमान मर्दों को आप बोल रहे हैं कि हमारी औरतों को कैसे संभालना चाहिए, मतलब हम संभालने वाली चीज हो गई है। आज हमको वो सरकार बोलती है कि मुसलमानों को हम संभालेंगे, हमारी कम्युनिटी बोलती है मुसलमानों को हम संभालेंगे, तो क्या हम कोई नाचीज है, हम कोई सामान है जो हम संभालने की चीज हो गई है। आपने इतने सालों में मुसलमान औरतों के बारे में क्या किया? लेकिन ट्रिपल तलाक के बारे में आपने 50 लाख मुसलमानों को सड़कों पे लाया। इस्लाम खतरे में है क्या? इस्लाम खतरे में है? आपने तो मोदी को मौका दे दिया, आपने तो इस सरकार को मौका दे दिया, आपने हिंदुत्ववादी राइट विंग्स को मौका दे दिया, और अब उनको मौका दे दिया। अब जो वो फिल्में बनाते हैं, हक जैसी फिल्में बनाते हैं, अब वो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, तो क्या वो उनको कौन मौका दे रहा है? तो आप तो कम्युनिटी में काम कीजिए ना, आप कम्युनिटी की औरतों को बताइए ना। आप यहाँ पे तफसील के बारे में बात कर रहे हैं, आप हर एक मुसलमान औरतों को आप इस तरह के पहनावे में दिखा रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी दिखना चाहिए। एजुकेशन में आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखती है? अपने अपने हक और अधिकार के लिए आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखती है? अपने अपने प्यार और अपनी सेक्सुअलिटी और अपनी चॉइस के बारे में आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखती है? अब वहां पे रेसिस्ट क्यों नहीं करते? हम अपने 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 परिवार के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमें प्रॉपर्टी को राइट्स नहीं देता, हमें एडॉप्शन का राइट्स नहीं देता, हमें हमें हमारे ऊपर पॉलीगेमी जैसा फोर्सफुली हमारे ऊपर ये थोपा जाता है, हलाला जैसी प्रैक्टिस होती है, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करें? जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम नीतीश कुमार को, मोदी सरकार को हम जवाबदेही नहीं कर सकते।
हमें वो मुसलमानों को भी बताना पड़ेगा कि इस देश में जो संविधान है, जहाँ पे सबको अधिकार दिया है, एक मुसलमान औरत को उसको दोयम दर्जे का क्यों रखा है अपनी कम्युनिटी के अंदर? उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्यों फंसा के रखा है? उसको बुर्का, हिजाब और इस्ताफ के अंदर क्यों फंसा के रखा है? फंसा के मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। आप उसके बारे में बात कीजिए। ये हम ही तो लोग हैं ना। जहाँ हम जब हमने स्टेटमेंट तैयार किया था तो हमने यही कहा था कि जब तक कि पितृसत्ता खत्म नहीं होगी तब तक की औरतें अपनी पहचान नहीं सकेगी। आपने अगर हिजाब और बुर्का उतार दिया, उससे पितृसत्ता नहीं बदलती है। और हिजाब और बुर्का हटाने से आपने क्या कर दिया? उसी पीयर लीडरशिप को आपने सेफ्रॉन स्कार्फ दे दिया। उसी पीयर ग्रुप को आपने सेफ्रॉन स्कार्फ दे दिया। वही पीयर ग्रुप के सामने आपने दूसरा पीयर ग्रुप शुरू कर दिया। तो इससे कोई बदलाव नहीं आया, इससे कोई पितृसत्ता को धक्का नहीं लगा, बल्कि मजबूत हुआ। तो मुझे लगता है कि ये हम ही लोग हैं, नारीवादी संगठन, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे रिलीजन अपने आप में एक बहुत ही इंस्टीट्यूशन है, उसको क्रिटिसाइज करते रहना चाहिए। और ये सरकार जो है, जो जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे लड़ती है, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करती है, इसलिए भी हमको आवाज उठानी चाहिए। तो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से वो दोनों मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते। वो ये कहती है ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है। बचपन से मेरी माँ अगर बुर्का मेरी बचपन से मेरी माँ अपने पिता का मार मेरे पिता का मार खाते रहेगी, तो मेरी बहन बोलेगी कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पिता को मारते हुए देखा। तो क्या मैं बोलूंगी शादी उसकी चॉइस है? मेरी माँ कहेगी अपनी बेटी को कि शादी मेरी चॉइस है? बचपन से मेरी माँ अगर नकाब पहन रही है तो मेरे घर के बच्चे भी नकाब ही पहनेंगे, क्योंकि हमारे घर में बहुत माहौल है। बचपन से मेरी माँ अगर किताबें पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो उनके बच्चे भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे। बचपन से मेरी माँ को बोला जाता है कि 7 और 8 बजे के बाद में गर्म रोटियां तू ही पकानी चाहिए ताकि घर के मर्द खाएंगे। तो फिर मेरी बहन की हमारे घर के बच्चे भी अब हम अपने अपने उस औरतों को फॉलो करेंगे। तो हमारे को भी अपनी कम्युनिटी के अंदर बात करनी चाहिए कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। मैं और जहरा, हम दोनों यहाँ पर है। आपका नाम जहरा है, मेरा नाम हसीना है। ये हमारे में 2 आइडेंटिटी वाले लोग मुसलमान हैं। आप किसकी आइडेंटिटी को मैं मानेंगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को मुसलमान मानता है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को आप बुरा मत मानिएगा, पर्सनल लेवल पर मत लीजिए, पॉलिटिकल लेवल पे लीजिए। आपकी आइडेंटिटी को इसलिए मुसलमान मानता है क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि यही आइडेंटिटी। तो आप मतलब कुछ भी आप बोले तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपका एक पहचान, जो आपने जो पहचान दी है, उससे आपको एक्सेस है, आपको स्पेस है, आपको जगह है, आपको क्राउड है, आपको मौके हैं। तो आप बोल सकती हैं। मेरे जैसे इंसान को क्राउड नहीं है, क्योंकि हम अलग हैं। मौके नहीं है, क्योंकि मौके नहीं मिलते। कहाँ से मिलेंगे? हम सड़कों पे जाते हैं, हम बसों में जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, बाजार मार्केट में जाते हैं, हम अपना क्राउड लाने जमा करने के लिए। लेकिन जो रिलीजियस आइडेंटिटी वाले जो लोग हैं, वो मस्जिदों में जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे क्राउड मिलेगा। मस्जिदों में जाना आसान है, दरगाह में जाना आसान है, इज्तिमा में जाना आसान है। आप बोलो कि मैंने 1000 औरतों से बात करी, आपने मोबिलाइज तो नहीं किया। हम मोबिलाइज करते हैं, आपने मोबिलाइज नहीं किया। आपको एक तैयारशुदा क्राउड मिल गया, जहां पे रिलीजन के नाम से उसके घर के मर्द भी बेचते हैं। लेकिन हमें मोबिलाइज करना पड़ता है, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ उसकी बात नहीं करते। हम कहते हैं कि ये जो चॉइस है, ये फोर्सिबल चॉइस नहीं होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा अगर कोई पहनता है, एक बड़ा सा माथे पे तिलक लगाता है और वो सेफ्रॉन पट्टी लगाता है, आप उसको चॉइस बोलेंगे कि 4 साल के बच्चे को? हाँ विद्या जी, नहीं बोलेंगे हम। 4 साल की बच्ची स्कार्फ पहनती है, आप उसको चॉइस बोलेंगे? चॉइस का मतलब क्या होता है? क्या चॉइस, अगर चॉइस का इतना डेमोक्रेटिक है, हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि मेरे चॉइस को इतना ओपन चॉइस दिया है, अधिकार है। मैं अगर कहती हूँ कि मतलब कोई बच्चा कहता है, कोई नौजवान कहता है, आई डोंट बिलीव योर चॉइस, इज इट द फैमिली अलाउड टू द टॉक अबाउट द ओपनली, द पर्सन इज अलाउड टू टॉक अबाउट द आवर राइट्स? नो, इट्स डिफिकल्ट। मे बी द मैन, बट द वुमेन ऑल्सो, women have a more difficult। तो मेरा कहना यह है कि मैं आइडेंटिटी को, रिलीजन के बेस पर अगर आइडेंटिटी होगी, तो हम किसी राइट विंग के सामने दूसरे राइट विंग्स बनेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। मुझे पता है कि हो सकता है इसमें डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ये डिफरेंसेस होना भी जरूरी, क्योंकि हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक में बिलीव करते हैं। कर्नाटका का इशू जब आया था, हमने स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियों को बुर्का पहनने दो। पितृसत्ता को खत्म करना है, तो लोगों के पहनावे को लेकर उसके साथ में
तुरंत उसको निकालना और पहनाना, ये दोनों भी अपने आप में खतरनाक राजनीति है ना। वो उस तरह की खतरनाक राजनीति में फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। हम बात करना चाहते थे कि बेबाक में कई औरतें बुर्का पहनती हैं, नकाब पहनती हैं, स्कार्फ पहन के आती हैं, है ना। हम तो उनसे बातचीत करते हैं। वो कभी पहनेंगे, कभी नहीं पहनेंगे, वो कौन सी जगह पे पहनते, कौन सी जगह पे नहीं पहनते, वो लोग भी नेगोशिएट करते हैं अपनी जगह से, अपनी तरीके से। कौन से फंक्शन में वो कब पहनते हैं, कौन से फंक्शन में नहीं पहनते, वो भी नेगोशिएट करते हैं। बट दिस इज देयर चॉइस, वो उनकी चॉइस है। लेकिन संवाद करना ये हमारा बिलीव है, ये हम मानते हैं। तो यस आई कैन, मैंने इतना ही कहना था प्लीज। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिस हसीना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज इनसाइट and giving us a clear picture of the challenges faced by minority women in India especially. I think Miss Vidya has to say something. Miss Vidya, over to you. Thank you. So, you know, I agree completely. जो भी हमारे साथी हसीना ने कहा, क्योंकि जब हिजाब कंट्रोवर्सी यहाँ पे था तो वही मेरे दिमाग में भी यही थॉट्स थे, एंड कि these are long fought freedoms for women to access spaces as they like, and therefore that whole confusion. Can we support girls saying hijab is my right? No, and we can say hijab is our choice. And it was so interesting because when I had a conversation with my good friend in Pakistan, उसने कहा कि तुम्हारा हिजाब इज माई राइट चल रहा है, तो हम लोग वहां से इंस्पायर होके हम लोग हिजाब निकालने की राइट हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर वॉकिंग द स्ट्रीट सेइंग हिजाब निकालना हमारा राइट है. तो यू नो आई थिंक we have to understand that South Asian women and Muslim women, all women, are fighting their own battles in their own way. And I think that this is very inspiring. सबकी अलग अलग एक पहचान है. Just I think even हसीना ने ये बात कही थी. और हमको एक सॉलिडारिटी बनाना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन मूव फॉरवर्ड. एंड आई थिंक दिस इंटरकनेक्टेडनेस, अभी a Muslim woman is being pushed back by society, by our government, and by her, sometimes her religious identity. Similarly, Hindu women also, like in our, you know, the hijab controversy really came up in our place. But here you also have that Hindu women who are going to temples must dress a certain way. You should only wear a sari, you know. And how do you agitate against this? Because then they'll tell you, no, why are you bothered what you have to wear? You have to dress in a certain way. You're not going to show off in a place of worship. You should be concentrated, etc. And I remember sometimes you have to flip the script by saying something very controversial yourself, and then it dies down. I remember challenging Mr. Pramod Mutalik and saying, but when I go to the temple and the priest is wearing only a mundu and nothing on top, I am getting distracted by him. Let him get into something more palatable to me, and then you teach me what to wear. So I think we have to keep pushing for our sisters and understand that every woman, whether she's Sikh, whether she is Dalit, whether she is a trans person, whether she is Hindu, Christian, is always kind of, and I'll take Hasina's word, of negotiating her freedoms and her ways of living. And that we must build solidarity with each other all the time. And I think when it comes to South Asia, हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है. कि आपकी group, it speaks out to all minorities across South Asia. And I think I have a friend in Bangladesh who was traveling by car and somebody came and spat at her because she was not wearing the hijab. And a lot of my Bengali, Bangladeshi friends are very concerned with the growing right wing that wants women to come into hijab all the time and stay quiet and, unnoticed in public and just be part of the crowd. And this growing kind of right wing tendency in South Asia across our region is something we need to build solidarity against. And that's why I'm very glad. And the minute I saw that Sarim had invited me, I said yes. And Hasina, I'm not a professor. You call me a professor. I'm not. I'm just like a street activist. That's all. Thank you. Thank you so much, Miss Vidya. Your insights bring the ground reality to life. I think Miss Hasina also want to share something. So, Miss Hasina, over to you. No, मैं सिर्फ
विद्या जो दो तीन पॉइंट में जो उन्होंने कहा ना इसके बारे में थोड़ा सा जैसे आपने शुरू में कहा था कि साड़ी इज माय चॉइस एक्चुअली, है ना। तो मैं आपको 2001 में जामिया मिलिया में एक मीटिंग हुआ था, एक नेशनल मीटिंग हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बुलाया था। और उन्होंने बुलाया नहीं, हमने बहुत दबाव डाला, प्रेशर डाला कि आप मुसलमानों को, क्या ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओ, अभी आपको ये पर्सनल लॉ का इशू को थोड़ा रिजॉल्व करो। तो हमने वो मीटिंग किया था, मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब जो थे वहाँ के सदर। तो मेमुना मुल्ला जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीएम की मेंबर है। मेमुना मुल्ला आप जानते हो, दिल्ली में रहती हैं। तो मेमुना मुल्ला क्योंकि वो बंगाल से हैं, वो साड़ी पहनते हैं। तो साड़ी पहनते हैं तो वो पेट का जो हिस्सा होता है ना थोड़ा सा खुलता है, जो दिख जाता है ऐसे आप साड़ी पहनते हैं। ब्लाउज और पेटीकोट के बीच का जो पार्ट होता है जिसम का, वो दिखता है। तो उस मीटिंग के अंदर एक 14-15 साल की एक लड़की आती है और वो कहती है कि मैम आपको, जो स्टेज पे बैठे हैं मौलाना साहब, वो कहते हैं कि आपका जो दिखता है जिसमें, उसको आप कवर कर दो। तो वो उसको आके कहती है, तो मेमुना मुल्ला जवाब देती है उस स्टेज पे बैठने वाले उलेमा को कि आपने मुझे घूरा, ये गलत है। एक बार मैं आपको माफ करूंगी, दूसरी बार मैं माफ। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप कहते हैं ना कि ये औरत कैसी है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब आप घूरते उस औरत। तो आप उस घूरने वाले आदमी को कहो कि आपने मुझे घूरा है। अगर नीतीश कुमार प्रॉब्लमेटिक है तो आप भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है। आपने मेरे को घूरने का आपको हक किसने दिया? मैं चाहे आपकी जो भी हूँ, आपके घर की औरत हूँ या पड़ोस की हूँ या दोस्त हूँ, चाहे जो रास्ते पे चलने वाली हूँ, मुझे आपको घूरने का आपको हक किसने दिया? ये मुझे लगता है कि ये बात हमें करनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों भी धर्म के आधार पे बनने वाला एक देश है। यहाँ पे मेजोरिटी मुसलमान है। तो जिस जिस बांग्लादेश और पाकिस्तान में मेजोरिटी मुसलमान और मेजोरिटी पार्लियामेंट मुसलमान, उनका जो मुद्दा है जेंडर राइट्स का, एक फेमिनिस्ट वुमेन का जो उनका मुद्दा है, इस देश में हमारा मुद्दा अलग। हमारा मुद्दा यह है कि हम माइनॉरिटी में, वो मेजोरिटी में। तो वहां पे वो जो उनके सामने जो राइट विंग्स है, उन राइट विंग्स को वो जवाब दे रहे हैं कि आप हमें जबरदस्ती नहीं पहनाओगे, आप हमें जबरदस्ती ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इस देश का माइनॉरिटी, आप मेरे पे जबरदस्ती नहीं करोगे, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, बिकॉज मैं इस देश के नागरिक हूँ, सिटीजन। तो आप मेरे सिटीजनशिप को नकार नहीं सकते, मेरे फंडामेंटल राइट्स को और आर्टिकल 25 को मेरे को नकार नहीं सकते। दिस इज माई एक्सप्रेशन, दिस इज माई राइट्स, ओके, है ना। तो हम माइनॉरिटी मुस्लिम जो है अपने आर्गुमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ले जाते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो जो जिस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, वो मेजोरिटी मुसलमान जो उनके सामने राइट विंग से, वो उसके सामने करते। एक्चुअली इस देश के हिंदू समुदाय के लोगों को करना चाहिए जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की औरतें कर रही है। इस देश के उन लोगों को करना चाहिए कि भैया तुम कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हो? तुम कौन से ये प्यार मोहब्बत में हमारे जो बड़े सर्विलेंस लेके बैठे हो, पुलिसिंग कर रहे हो, ये कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हो? तो यहाँ के हिंदू धर्म से जुड़ी हुई महिलाओं ने आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, समुदाय ने बात करना चाहिए कि देखिए जो पाकिस्तान की लोग औरत मार्च निकालते हैं, इतना प्रोटेस्ट करते हैं, तहरीर स्क्वायर करते हैं, पाकिस्तान में इतने मार्च होते हैं, यहाँ पे किधर मार्च हो रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा जंतर मंतर, हमारा आजाद मैदान, हमारा जितनी भी जगह है वो सारी खाली पड़ी है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ के लोगों ने, मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, उन्होंने ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मेजोरिटी कम्युनिटी की। तो मुझे लगता है उसका एग्जाम्पल इधर की और उधर की बुरखे की तरफ से देना मुझे लगता है थोड़ा सा अलग बात है। यहाँ पे मैं ये करेक्ट करना चाहती हूँ। Absolutely. I think I agree. At the same time, building solidarity will mean that that's why I said, कि as Hindus, we fight our own battles as Hindu women. And that gives me an understanding कि a Muslim woman is, what is she going through? ईरान में क्या हुआ? 1979 में जो ईरान रेवोल्यूशन करके जो बना था, वो जो पूरा ईरानियन को एक पीछे लेके गया, वो लॉस को पीछे लेके गया। खोमेनी ने पूरी तरह से ईरान की जो डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे औरतें पार्लियामेंट से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर पब्लिक डोमेन में वो इतनी विजिबलाइज थी, इतनी विजिबल थी, इतने बड़े पैमाने पर एजुकेशन वगैरह, हायर लेवल की पॉलिटिशियंस थी। तो आपने क्या किया? जो एक औरत ने, एक लड़की ने आपके तरीके से वो सही नहीं पहना, आपने उसको मार दिया। उसके सामने कौन लोग आए? उसके सामने वो लोग आए कि ये ईरान नहीं है, ये वो देश नहीं है जिसको हमने बनाया। मुझे लगता है कि ईरान से सीखना चाहिए इस देश के लोगों को कि आप क्या रहे हो। मतलब किसी के शरीर पर, किसी के पहनावे पर आप जबरन तरीके से बोलते हो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है।
है ना? अभी यहाँ का मुसलमान क्या कहेगा बताओ? यहाँ का देश, इस देश का मुसलमान क्या कहेगा? ये देश का मुसलमान जो है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि वो जो लड़की है जिसको मार दिया गया वो सही है, तो यही कहेगा ना, क्योंकि वहां तो सही तरीके से मारा गया ना कि तुमने ठीक तरह से नकाब नहीं लिया, तुम्हारे सीने पर तुम्हारा दुपट्टा कवर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए उसको मार दिया गया। तो यहाँ का रिलीजियस मुसलमान क्या बोलेगा? वो 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 नहीं बोलेगा जोर से, लेकिन अंदर तो ये मानेगा कि भाई हक तो है, सही तो बात है। तो किधर है हम, है किधर फिर? I अगर हम एक राइट विंग्स के अगेंस्ट में हम यहाँ का माइनॉरिटी मुसलमान है, तो हम इंटरनेशनल राइट विंग्स के बारे में हमारी क्या रोल क्या है, हमारा क्या स्टैंड क्या है? हमने ईरान के बारे में क्या स्टैंड लिया? मैं उर्दू अखबार पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, किसी ने स्टैंड लिया क्या? एक दो प्रोग्रेसिव लोग हैं जिन्होंने, जो रिलीजियस है, इंस्टीट्यूशन से, जो मानते हैं कि ये गलत है, तो उन्होंने किया। मैं नहीं कह रही कि सब तरीके के लोगों ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने माना, लेकिन जो लार्जर पॉपुलेशन से, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, जो जमात इस्लामी, दारुल देवबंद वगैरह वगैरह, उन्होंने क्या स्टैंड लिया? कह रहे थे कि मारना गलत है। अरे भाई, मारा तो मरी ना वो लेडी, आपने जिस तरह से भी उसको मारा, लेकिन तब तो जाके मरी ना। उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको डरावना एक माहौल बनाया, तब तो वो इंसान की डेथ हो गई ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि मारना मतलब किस तरीके का मारना, डराना यानी किस तरीके का डराना? ये बहुत डेफिनेशन जो है ना वो बदलता है। एक अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो एक छोटा सा इंटरवेंशन साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट का। तो बांग्लादेश में मुझे जो मुस्लिम औरतें और दूसरे प्रोग्रेसिव्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि हमारा बांग्लादेश तो 71 में बना, तो इट वाज नॉट बेसिस रिलीजियस आइडेंटिटी, इट्स अ डेमोक्रेटिक लैंग्वेज आइडेंटिटी। हम Yeah. लोग बंगाली है, हम लोग, वी कैनॉट बी क्लब टुगेदर विद पाकिस्तानीज, वी हैव नथिंग कल्चरली with them, common with them, and therefore we want our own country. So it was a language movement in a sense, and therefore International Language Day is also commemorating their shahadats for their Bengali language. And therefore I think it's a very interesting articulation that we must tap into. अगर सारे मिलके एक और करे in which they try to think through कि in the present very challenging context in Bangladesh हम लोग कैसे how do we understand and create the space for progress of women's ideals and freedoms. I think that would be very, very interesting. Yes, that's a good idea, actually. Very informative. Thank you so much for your responses, dear speakers. We support every minority woman across South Asia, especially in Pakistan. We support Hindu and Christian minority groups. So, as we conclude today's webinar, I want to take a moment to reflect on the key point discussed. Today, we explore the challenges faced by minority women in India, particularly around the hijab and the personal freedom and social discrimination. Ms. Hasina reminds us everyday struggle of a woman on ground and the urgent need of the legal reform and protection of rights. Ms. Vidya highlighted how activism, advocacy, and community support can challenge systematic injustice and empower marginalized communities. Together, their insight shows us reality of discrimination and the strength and the resilience of women who continue to fight for their rights. On the behalf of SARIM, I sincerely thank our speakers for sharing the knowledge, experiences, and I also thank all of you for participating in today's session, especially Ms. Manisha. We look forward to continue these conversations in future, raising awareness, working for justice, equality, and inclusion for minority women across South Asia. Until next time, I'm Zahra Naqvi signing off. Thank you for listening to us. Thank you so much. Thank you. Thank you.